Good morning, students. This chapter I am taking combustion and flame, and after coal and petroleum, this chapter is linked with how combustion occurs and what kind of substances are combustible ones. So, first of all, we must know what is combustion and what are combustible substances. The combustible substances are those substances which burn in air to produce heat and light. जो भी चीज़ें जलकर हीट और लाइट पैदा करते हैं उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोल, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल. दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. नाउ व्हाट इज कंबशन? The chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat is called combustion. ये प्रोसेस जिसमें आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है जिससे वो चीज़ को जलाए और हीट प्रोड्यूस करे, लाइट प्रोड्यूस करे, तो हम कहेंगे यहाँ पर कंबशन हुआ है. और जो चीज़ें अंडरगोस कंबशन करती हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर अंडरगोइंग कंबशन, वी विल से इट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. And in other words, it is a fuel. So what is fuel? Fuel is a substance which undergoes combustion. कभी कभी light is also produced in combustion. Means sometimes you get light, otherwise heat is produced. Okay. You know that air is very important for burning. So for this there is a simple activity in your book. You have to light a candle and put it on a table, okay? And after that, what you will do, you will cover up it with an inverted glass, and you will see that the candle stops burning, okay? And if you are keeping a chimney over it and it is having some pores inside it, then the candle will burn continuously, okay? जब आप एक कैंडल लेंगे, कैंडल के बाद उसके ऊपर चिमनी रख देंगे और चिमनी रखने के बाद उस इस तरह से रखेंगे कि हल्की सी हवा उसमें जा पाए, तो आप देखोगे कि आपकी जो कैंडल है वो जल रही है. लेकिन अगर आप उसको पूरी तरीक़ा से ढक लोगे तो आपकी जो कैंडल है वो बुझ जाती है. इससे पता चलता है कि हवा बहुत ज़रूरी है बर्निंग के लिए. इग्निशन टेम्परेचर, अभी हम जानते हैं whenever we are burning a fuel, a minimum temperature is needed to burn that fuel. So the minimum temperature needed for any substance to catch fire is called ignition temperature. तो वो जो minimum temperature है जो चाहिए किसी को आग पकड़ने के लिए, तो उसको हम कहेंगे ignition temperature. A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. Ignition temperature को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, then only our combustion will start. That's why it takes too much time in igniting a coal, because its ignition temperature is very high. If a substance is very low ignition temperature, it will catch the fire easily, and such substances are called inflammable substances. Like petrol, alcohol, LPG, CNG, they are highly inflammable because their ignition temperature is very low. Now there are some conditions which are needed for combustion. These are three things are very important for combustion. One is fuel, second is air supply, that is oxygen supply is needed, third minimum temperature, that is ignition temperature. Okay, तो ये तीनों अगर नहीं होंगे तो आग लगना मुश्किल है. तो तीन में से तीनों चीज़ हमें चाहिए, और इसी को हम कंट्रोल ऑफ फायर में भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स if three things are needed for occurrence of combustion, you can remove any one of these three, so combustion will stop. Okay, that is fuel, you need supply of oxygen, you need heat. So if you remove any one of these three, then combustion will stop or the fire will stop. Fires can be controlled by removing any of these three conditions. A fire extinguisher, which is shown below in the picture, this red colored one, cuts off the supply of air or brings down the temperature of the fuel or both and controls the fire. ये क्या करता है? तापमान को गिराता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोकता है, जिस वजह से जो आग लगी है वो स्टॉप हो जाती है, एंड वी कैन कंट्रोल फायर.
There are two methods by which we can control fire, and this is very important. One is by using the water, and second by using carbon dioxide. Water is most common fire extinguisher. It can be used only when materials like wood, paper, etc. are on fire. Water cannot be used if electrical equipments are on fire because water conducts electricity and harm those trying to put out the fire. Water cannot be used to put out oil and petrol fires because they float on water and contribute to burn. मीन्स कि पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने पर. दो केसेस में पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. एक तो बेटा जब इलेक्ट्रिकल फायर हो, इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो. दूसरा जब हमारे जो तेल वाली आग हो, जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, क्योंकि ये हल्के होते हैं, वेट में हैवियर नहीं होते हैं, और पानी हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है, इनकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर आ जाएगा. तो ऊपर आ जाएगा तो पानी अब कितना भी फेंकेंगे तो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर तैरेंगे और कंटिन्यूसली फायर विल गो ऑन, कंबशन विल कैरी ऑन. एंड सेकेंडली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसमें यूज़ नहीं कर सकते वाटर, क्योंकि water is a good conductor, so we cannot use it for controlling the fire. Okay, it may lead to electrical shocks and other problems. By using carbon dioxide is the best fire extinguisher. सबसे बढ़िया होता है फॉर स्पेशली फॉर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि CNG है, LPG की आग है, पेट्रोल की है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन एयर, ये भारी होती है तो कवर अप कर देती है फायर को, एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी सप्लाई को रोकती है, एंड पुट्स आउट द फायर, और आग बुझा देती है. कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है. फायर जो सिलेंडर्स होते हैं, एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स, उसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये आग बुझाने में मदद हमारी करते हैं. ठीक है, 3 तरह के कंबशन होते हैं बेटा. एक है रैपिड कंबशन, एक है स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक है एक्सप्लोजन. तो रैपिड का मतलब तेजी से. तो इट इज़ द कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, बहुत तेजी से जलता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और आग प्रोड्यूस करता है, एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट. बाहर से उसको हीट मिलती है तो वो जलता है और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलकर हीट प्रोड्यूस करके देता है, जैसे कि LPG सिलेंडर हमारे घरों में जो होते हैं. स्पॉन्टेनियस, जैसे कि धीरे धीरे धीरे, समझ आ रहा है. इस कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट. स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से तुम्हें पता नहीं चलेगा और वो जल जाएगी वो चीज़, और आपको हीट और लाइट होगी विदाउट द हेल्प एक्सटर्नल हीट. उसको बाहर की हीट ही नहीं चाहिए. तो ऐसी चीज़ें जब जैसे फोस्फोरस जलता है, इवन सोडियम को भी हम स्टोर करते हैं और केरोसिन में, अगर हम उसको बाहर निकालेंगे हवा में तो स्पॉन्टेनियसली वो आग पकड़ लेता है. तो ये एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है. और एक्सप्लोजन में तो फिर जैसे क्रैकर्स आपके एक्सप्लोड हो जाते हैं एकदम तेज़ी के साथ, हाई हीट और प्रेशर देते हैं. तो इसमें इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली एंड प्रोड्यूसेस हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर. 3 तरह के कंबशन है आपके. तो ये देखो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, रैपिड, और दूसरा स्पॉन्टेनियस, और तीसरा एक्सप्लोजन. तो फ्लेम इज़ द जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ये एक जोन है जहाँ पर कंबशन होता है. सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम्स. जो सब्सटेंसेस वेपराइज करते हैं वही फ्लेम बनाते हैं, क्योंकि इनका जो वेपर मैटर होता है वो एयर में आ जाता है थोड़ा सा, इस वजह से इनकी जो फ्लेम बनती है. क्योंकि इनका जैसे वैक्स को आप जलाते हैं, कैंडल को, तो आप देखते हैं कि कैंडल का जो वैक्स का बर्निंग मटेरियल फ्यूल है वो थोड़ा सा एयर में भी आ जाता है वेपराइज होके, इस वजह से वो वहाँ पर आग पकड़ लेता है. तो कैरोसिन और वैक्स हो गए. और जो सब्सटेंसेस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम्स, उनकी फ्लेम नहीं बनेगी. जो वेपराइज नहीं होते हैं, जो हवा में नहीं आते हैं, तो वो वेपराइज ही नहीं हो रहे तो वो फ्लेम बनाएंगे ही नहीं. उनको तो उनकी सरफेस ही जलेगी बस, ऐसे कि कोल, चारकोल, इनमें फ्लेम नहीं बनती है. इसके बाद है हमारा कैंडल का फ्लेम स्ट्रक्चर है. इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं कैंडल की फ्लेम को ध्यान से देखो. देयर आर 3 जोन्स. आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर,
then middle zone yellow colored, and innermost one black colored. Okay, the outermost zone is very is a zone of complete combustion. ये कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पर, और ये ब्लू कलर की इसलिए होती है बिकॉज इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंबशन होता है, और इसलिए ये ब्लू कलर की होती है और सबसे ज़्यादा हॉट इसलिए होती है. देन वी गो इन द मिडिल जोन, इट इज़ येलो, इट इज़ जोन ऑफ पार्शियल कंबशन. यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, अधूरा, इस वजह से येलो कलर की होती है और इसलिए मॉडरेटली मतलब थोड़ा थोड़ा हॉट होती है, गर्म. फिर जो इनर मोस्ट लेयर है वो ब्लैक कलर की होगी, इसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं जो जलते नहीं हैं अच्छे से, तो ये इसलिए लीस्ट हॉट होती है. इसलिए कैंडल में आप बीच बीच से हाथ निकालेंगे तो जलेगा नहीं उतना अच्छे से. अभी हमारे तो ये 3 जोन हमने बताए, आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है. अभी हम टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं, 3 तरह के हमारे फ्यूल होते हैं, एक तो सॉलिड फ्यूल है, एक लिक्विड फ्यूल है, एक गैसियस फ्यूल है. सॉलिड जैसे कि पता चल रहा है जिसका स्टेट सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि वुड, कोल, चारकोल. लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल. गैसियस फ्यूल्स जो गैस फॉर्म में रहते हैं, तो वो हो गया आपके गैसियस फॉर्म में जो रहेंगे. अब है फ्यूल कैसा होना चाहिए. गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल वो माना जाता है इज़ रेडिली अवेलेबल, जो ईजिली अवेलेबल हो, ये नहीं कि उसको ढूंढने हमें जाना पड़ रहा है इधर उधर और वो हमारे मार्केट में भी नहीं मिल रहा, हमारे पास नहीं मिल रहा. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग सच अ फ्यूल. Secondly, it should be cheap, it should be easy to store and transport, it should burn at moderate rate, it should produce a large amount of heat, it should not leave ash behind and polluting substances, and it should not cause pollution. So these are the characters which you have to take care of. Okay.